صحیح بخاری کتاب غزوت کا بیان باب حج الوداع کا بیان حدیث نمبر 4401 ترجمہ ہم سے ابوالیمان حکم بن نافع نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہی زہری نے کہا مجھ سے رو بن زبیر اور ابو سلمہ بن عبدال الرحمن نے بیان کیا اور انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صفی حج الوداع کے موقع پر حائضہ ہو گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا ابھی ہمیں ان کی وجہ سے رکنا پڑے گا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو مکہ لوٹ کر طواف زیارت کر چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسے چلنا چاہیے، طواف وداع کی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری کتاب غزوت کا بیان باب حج الوداع کا بیان حدیث نمبر 4402 ترجمہ ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبداللہ بن وہب نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے عمر بن محمد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ ہم حج الوداع کہا کرتے تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ حج الوداع کا مفہوم کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کی، پھر مسیح دجال کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں سب نے دجال سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا اور دوسرے بعد میں آنے والے انبیاء نے بھی، اور وہ تم ہی میں سے نکلے گا۔ پس یاد رکھنا کہ تم کو اس کے جھوٹے ہونے کی اور کوئی دلیل نہ معلوم ہو تو یہی دلیل کافی ہے کہ وہ مردود کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کی آنکھ ایسی معلوم ہوگی جیسے انگور کا دانہ۔ صحیح بخاری کتاب غزوت کا بیان باب حج الوداع کا بیان حدیث نمبر 4403 ترجمہ خوب سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے آپس کے خون اور اموال اسی طرح حرام کیے ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے میں ہے۔ ہم بولو کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ بولے کہ آپ نے پہنچا دیا۔ فرمایا اے اللہ تو گواہ رہی ہو، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دہرایا۔ افسوس آپ نے ویلکم فرمایا یا وہکم، راوی کو شک ہے، دیکھو میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے مسلمان کی گردن مارنے لگ جاؤ۔ صحیح بخاری کتاب غزوت کا بیان باب حج الوداع کا بیان حدیث نمبر 4404 ترجمہ ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر بن معاوی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوا صحاب سبیعی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے زید بن ارقم نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 غزوے کیے اور ہجرت کے بعد صرف ایک حج کیا۔ اس حج کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حج نہیں کیا۔ یہ حج الوداع تھا۔ ابوا صحاب نے بیان کیا کہ دوسرا حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مکہ میں کیا تھا۔ صحیح بخاری کتاب غزوت کا بیان باب حج الوداع کا بیان حدیث نمبر 4405 ترجمہ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، ان سے علی بن مدرک نے بیان کیا، ان سے ابو زرع حرم بن عمرو بن جریر نے بیان کیا اور ان سے جریر بن عبداللہ بجلی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع کے موقع پر جریر سے فرمایا تھا لوگوں کو خاموش کر دو، پھر فرمایا میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ صحیح بخاری کتاب غزوت کا بیان باب حج الوداع کا بیان حدیث نمبر 4406 ترجمہ مجھ سے محمد بن مسنا نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے عبدال الرحمن بن ابی بکرہ نے اور ان سے ابو بکرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اپنی اصل حالت پر گھوم کر آ گیا ہے، اس دن کی طرح جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ دیکھو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 4 ان میں سے حرمت والے مہینے ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مضر جو جمادی الاولی اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور ان کے رسول کو بہتر علم ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا شاید آپ مشہور نام کے سوا اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم بولے کہ کیوں نہیں؟ پھر دریافت فرمایا اور یہ شہر کون سا ہے؟ ہم بولے کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر علم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا شاید اس کا کوئی اور نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں گے جو مشہور نام کے علاوہ ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
किया ये मक्का नहीं है। हम बोले क्यों नहीं, ये मक्का ही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया और ये दिन कौन सा है? हम बोले कि अल्लाह और इसके रसूल को ज़्यादा बेहतर इल्म है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और हमने समझा शायद इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मशहूर नाम के सिवा कोई और नाम रखेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया ये यौम अल-नहर कुर्बानी का दिन नहीं है। हम बोले कि क्यों नहीं? इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम्हारा खून और तुम्हारा माल। मुहम्मद ने बयान किया कि मेरा ख्याल है कि अबू बकरा ने यह भी कहा, और तुम्हारी इज्जत तुम पर उसी तरह हराम है जिस तरह ये दिन का तुम्हारे इस शहर और तुम्हारे इस महीने में, और तुम बहुत जल्द अपने रब से मिलोगे और वो तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। बस मेरे बाद तुम गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। और जो यहाँ मौजूद हैं वो उन लोगों को पहुंचा दें जो मौजूद नहीं हैं। हो सकता है कि जिसे वो पहुंचाएं उनमें से कोई ऐसा भी हो जो यह बात सुनने वालों से ज़्यादा इस हदीस को याद रख सकता हो। मोहम्मद बिन सरीन जब इस हदीस का जिक्र करते तो फरमाते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो किया मैंने पहुंचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा ये जुमला फरमाया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब हज तलविदा का बयान। हदीस नंबर 4407। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ फरीबी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे कैस बिन मुस्लिम ने, उनसे तारिक बिन शहाब ने कि चंद यहूदियों ने कहा कि अगर ये आयत हमारे यहाँ नाज़िल हुई होती तो हम इस दिन ईद मनाया करते। उन्होंने फरमाया कौन सी आयत? इन्होंने कहा अलयुम आकमलत लकम दैनकम व आत्ममत अलैकुम निमती, आज ने तुम पर अपने दीन को मुकम्मल किया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी। इस पर उन्होंने फरमाया कि मुझे खूब मालूम है कि ये आयत कहाँ नाज़िल हुई थी। जब ये आयत नाज़िल हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में खड़े हुए थे, यानी हज तलविदा में। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब हज तलविदा का बयान। हदीस नंबर 4408। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबुल असूद मोहम्मद बिन अबदाल रहमान बिन नौफल ने, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया और उनसे उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने बयान किया कि हम जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए निकले तो कुछ लोग हम में से उम्रा का एहराम बांधे हुए थे, कुछ हज का और कुछ उम्रा और हज दोनों का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज का एहराम बांधा था। जो लोग हज का एहराम बांधे हुए थे या जिन्होंने हज और उम्रा दोनों का एहराम बांधा था वो कुर्बानी के दिन हलाल हुए थे। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, फिर यही हदीस बयान की। इसमें यूं है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज तलविदा के लिए हम निकले। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उसी तरह जो पहले मज़कूर हुआ। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब हज तलविदा का बयान। हदीस नंबर 4409। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, कहा हमसे इब्न शहाब ने, उनसे आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास ने और उनसे उनके वालिद साद ने बयान किया कि हज तलविदा के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। बीमारी ने मुझे मौत के मुँह में ला डाला था। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जैसा कि आपने मुलाहज़ा फरमाया है, मेरा मर्ज़ इस हद को पहुँच गया है और मेरे पास माल है जिसकी वारिस खाली मेरी एक लड़की है, तो किया मैं अपना 2/3 माल खैरात कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। मैंने अर्ज़ किया आधा कर दूँ। फरमाया कि नहीं। मैंने फरमाया किया फिर तिहाई कर दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिहाई भी बहुत है। तुम अपने वारिसों को मालदार छोड़कर जाओ तो ये इससे बेहतर है कि इन्हीं मुहताज छोड़ो और वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें, और तुम जो कुछ भी खर्च करोगे अगर इससे अल्लाह की रज़ा मकसूद रही तो तुम्हें इस पर सवाब मिलेगा, हत्ता कि इस लुक़मा पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा जो तुम अपनी बीवी के मुंह में रखोगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बीमारी की वजह से किया मैं अपने साथियों के साथ मदीना नहीं जा सकूँगा। फरमाया अगर तुम नहीं जा सके तब भी अगर तुम अल्लाह की रज़ा जोई के लिए कोई अमल करोगे तो तुम्हारा दर्जा अल्लाह के यहाँ और बुलंद होगा, और उम्मीद है कि तुम अभी ज़िंदा रहोगे और तुमसे कुछ लोगों मुसलमानों को नफ़ा पहुँचेगा और कुछ लोगों इस्लाम के दुश्मनों को नुकसान पहुँचेगा। ऐ अल्लाह, मेरे साथियों की हिजरत को कामिल फरमा और इन्हीं पीछे ना हटा, लेकिन नुकसान में तो साद बिन खुला रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मक्का में वफ़ात पा जाने की वजह से ज़ाहिर फरमाया। सही बुखारी
किताब गज़वत का बयान। बाब हज अलविदा का बयान। हदीस नंबर 4410। तर्जुमा। मुझसे इब्राहिम बिन मनज़र ख़ज़ामी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबू ज़मरा अनस बिन नियाज़ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, उनसे नाफ़ा ने और इन्हें अब्दुल्लाह बिन उम्र ने ख़बर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अलविदा में अपना सर मनडुई था। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब हज अलविदा का बयान। हदीस नंबर 4411। तर्जुमा। हमसे उबैदुल्लाह बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन बकर ने बयान किया, कहा हमसे इब्न जरेज ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़बा ने, इन्हीं नाफ़ा ने और इन्हीं इब्न उम्र ने ख़बर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके बाज़ असहाब ने हज अलविदा के मौका पर सर मनडुई था और बाज़ दूसरे सहाबा ने सिर्फ तरिशवा लिया था। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब हज अलविदा का बयान। हदीस नंबर 4412। तर्जुमा। हमसे यही बिन क़ज़िया ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे शहाब ने बयान किया, दूसरी सनद, और लीस बिन साद ने बयान किया कि मुझसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया और इन्हें अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने ख़बर दी कि वो एक गधे पर सवार होकर आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनी में खड़े लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। ये हज अलविदा का मौका था। उनका गधा सफ़ के कुछ हिस्से से गुजरा, फिर वो उतर कर लोगों के साथ सफ़ में खड़े हो गए। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब हज अलविदा का बयान। हदीस नंबर 4413। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया कि मुझसे मेरे वालिद रू ने बयान किया, इन्होंने कहा कि उसामा से हज अलविदा के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़र में रफ्तार के मुताल्लिक़ पूछा गया तो इन्होंने कहा कि बीच की चाल चलते थे और जब कुशादा जगह मिलती तो इससे तेज़ चलते थे। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब हज अलविदा का बयान। हदीस नंबर 4414। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद ने, उनसे इदी बिन साबित ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन यजीद ख़ुतमी ने और इन्हें अबवायूब ने ख़बर दी कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अलविदा के मौका पर मग़रिब और इशा मिलाकर एक साथ पढ़ी थीं। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब ग़ज़वा तबूक का बयान। इसका दूसरा ग़ज़वा असरत यानी तंगी का ग़ज़वा भी है। हदीस नंबर 4415। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अबवासामा ने बयान किया, उनसे बरीद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी बरदा ने और उनसे अबू मूसा अशअरी ने बयान किया कि मुझे मेरे साथियों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके लिए सवारी के जानवरों की दरख्वास्त करूं। वो लोग आपके साथ जैश असरत यानी ग़ज़वा तबूक में शरीक होना चाहते थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे साथियों ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है ताकि आप उनके लिए सवारी के जानवरों का इंतज़ाम करा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं तुमको सवारी के जानवर नहीं दे सकता। मैं जब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था तो आप गुस्सा में थे और मैं इसे मालूम ना कर सका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार से मैं बहुत गमगीन वापस हुआ। ये खौफ भी था कि कहीं आप सवारी मांगने की वजह से खफा ना हो गए हूँ। मैं अपने साथियों के पास आया और इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की खबर दी, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि मैंने बिलाल की आवाज़ सुनी, वो पुकार रहे थे, ए अब्दुल्लाह बिन कैस। मैंने जवाब दिया तो इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 2 जोड़े और ये 2 जोड़े ऊँट के ले जाओ। आपने 6 ऊँट इनायत फरमाए। इन ऊँटों को आपने उसी वक्त साद से ख़रीदा था और फरमाया कि इन्हें अपने साथियों को दे दो और इन्हें बताओ कि अल्लाह ताला ने या आपने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी सवारी के लिए इन्हें दिया है, उन पर सवार हो जाओ। मैं इन ऊँटों को लेकर अपने साथियों के पास गया और उनसे मैंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी सवारी के लिए ये इनायत फरमाए हैं, लेकिन अल्लाह की कसम कि अब तुम्हें इन सहाबा के पास चलना पड़ेगा जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार फरमाना सुना था। कहीं तुम ये ख्याल ना कर बैठो कि मैंने तुमसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताल्लिक़ गलत बात कह दी थी। इन्होंने कहा कि तुम्हारी सच्चाई में हमें कोई शुबह नहीं है, लेकिन अगर आपका इसरार है तो हम ऐसा भी कर लेंगे।
अबू मूसा उनमें से चंद लोगों को लेकर इन सहाबा के पास आए जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद सुना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो देने से इनकार किया था लेकिन फिर इनायत फरमाया। इन सहाबा ने भी उसी तरह हदीस बयान की जिस तरह अबू मूसा ने उनसे बयान की थी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा तबूक का बयान। इसका दूसरा ग़ज़वा असरत यानी तंगी का ग़ज़वा भी है। हदीस नंबर 4416। तर्जुमा हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन समीर क़फ़ान ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उनसे हुक्म बिन अतबा ने, उनसे मसब बिन साद ने और उनसे उनके वालिद ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के लिए तशरीफ़ ले गए तो अली को मदीना में अपना नायब बनाया। अली ने अर्ज़ किया कि आप मुझे बच्चों और औरतों में छोड़े जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम इस पर खुश नहीं हो कि मेरे लिए तुम ऐसे हो जैसे मूसा के लिए हारून थे, लेकिन फ़र्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। और अबू दाऊद तयालसी ने इस हदीस को यूँ बयान किया कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे हुक्म बिन अतबा ने और इन्होंने कहा मैंने मसब से सुना। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा तबूक का बयान। इसका दूसरा ग़ज़वा असरत यानी तंगी का ग़ज़वा भी है। हदीस नंबर 4417। तर्जुमा हमसे उबैदुल्लाह बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन बकर ने बयान किया, कहा हमको इब्न जरेज ने ख़बर दी, कहा कि मैंने अता से सुना, इन्होंने ख़बर देते हुए कहा कि मुझे सफ़ून बिन यली बिन उमैया ने ख़बर दी और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा असरत में शरीक था। बयान किया कि यली कहा करते थे कि मुझे अपने तमाम अमलों में उसी पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। अता ने बयान किया, उनसे सफ़ून ने बयान किया कि यली ने कहा, मैंने एक मज़दूर भी अपने साथ ले लिया था। वो एक शख्स से लड़ पड़ा और एक ने दूसरे का हाथ दंत से काटा। अता ने बयान किया कि मुझे सफ़ून ने ख़बर दी कि उन दोनों में से किसने अपने मुकाबिल का हाथ काटा था, ये मुझे याद नहीं है। बहरहाल जिसका हाथ काटा गया था उसने अपना हाथ काटने वाले के मुंह से जो खींचा तो काटने वाले के आगे का एक दंत भी साथ चला आया। वो दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दंत के टूटने पर कोई क़सास नहीं दिलवाया। अता ने बयान किया, मेरा ख्याल है कि इन्होंने ये भी बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर किया वो तेरे मुंह में अपना हाथ रहने देता ताकि तो उसे ऊँट की तरह चबा जाता। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब कब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा के वाक़या का बयान। हदीस नंबर 4418। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक ने, जब कब नाबीना हो गए तो उनके लड़कों में वही कब को रास्ते में पकड़कर चला करते थे। इन्होंने बयान किया कि मैंने कब से उनके ग़ज़वा तबूक में शरीक न हो सकने का वाक़या सुना। इन्होंने बताया कि ग़ज़वा तबूक के सिवा और किसी ग़ज़वा में ऐसा नहीं हुआ था कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक न हुआ हूँ। अलबत्ता ग़ज़वा बदर में भी शरीक नहीं हुआ था, लेकिन जो लोग ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हो सके थे, इनके मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी क़स्म की खफगी का इजहार नहीं फरमाया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौका पर सिर्फ़ क़ुरैश के काफ़िले की तलाश में निकले थे, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से किसी पहली तैयारी के बग़ैर आपकी दुश्मनों से टक्कर हो गई और मैं लैला उक़बा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था। ये वही रात है जिसमें हमने मक्का में इस्लाम के लिए अहद किया था और मुझे तो ये ग़ज़वा बदर से भी ज़्यादा अजीज़ है। अगरचे बदर का लोगों की ज़ुबानों पर चर्चा ज़्यादा है। मेरा वाक़या ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना कवी और इतना साहब माल नहीं हुआ था जितना इस मौका पर था, जबकि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तबूक के ग़ज़वे में शरीक नहीं हो सका था। अल्लाह की कसम, इससे पहले कभी मेरे पास 2 ऊँट जुमा नहीं हुए थे, लेकिन इस मौका पर मेरे पास 2 ऊँट मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी किसी ग़ज़वे के लिए तशरीफ़ ले जाते तो आप इसके लिए ज़मानी अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इस ग़ज़वा का जब मौका आया तो गर्मी बड़ी सख्त थी, सफ़र भी बहुत लंबा था, बियाबानी रास्ता और दुश्मन की फ़ौज की कसरत तादाद, तमाम मुश्किलात सामने थीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से इस ग़ज़वा के मुताल्लिक़ बहुत तफ़सील के साथ बता दिया था ताकि इसके मुताबिक पूरी तरह से तैयारी कर लीं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिमत की भी निशानदही कर दी जदुर से आपका जाने का इरादा था। मुसलमान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत थे, इतने कि किसी रजिस्टर में सबके नामों का लिखना भी मुश्किल था।
कअब ने बयान किया कि कोई भी शख्स अगर इस ग़ज़वे में शरीक ना होना चाहता तो वो ये ख्याल कर सकता था कि इसकी गैर हाज़िरी का किसी को पता नहीं चलेगा, सिवा इसके कि इसके मुताल्लिक़ वही नाज़िल हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस ग़ज़वा के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो फल पकने का ज़माना था और साया में बैठकर लोग आराम करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तैयारियों में मसरूफ़ थे और आपके साथ मुसलमान भी। लेकिन मैं रोज़ाना सोचा करता था कि कल से मैं भी तैयारी करूँगा और इस तरह हर रोज़ उसे टालता रहा। मुझे इसका यकीन था कि मैं तैयारी कर लूँगा, मुझे आसानियाँ मैसर रहीं। यूं ही वक्त गुजरता रहा और आखिर लोगों ने अपनी तैयारियाँ मुकम्मल भी कर लीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को साथ लेकर रवाना भी हो गए। इस वक्त तक मैंने तैयारी नहीं की थी। इस मौका पर भी मैंने अपने दिल को यही कहकर समझा लिया कि कल या परसों तक तैयारी कर लूँगा और फिर लश्कर से जा मिलूँगा। कोच के बाद दूसरे दिन मैंने तैयारी के लिए सोचा, लेकिन इस दिन भी कोई तैयारी नहीं की। फिर तीसरे दिन के लिए सोचा और उस दिन भी कोई तैयारी नहीं की। यूं ही वक्त गुजर गया और इस्लामी लश्कर बहुत आगे बढ़ गया। ग़ज़वा में शिरकत मेरे लिए बहुत दूर की बात हो गई और मैं यही इरादा करता रहा कि यहाँ से चलकर इन्हें पालूंगा। काश मैंने ऐसा कर ली होता, लेकिन ये मेरे नसीब में नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद जब मैं बाहर निकलता तो मुझे बड़ा रंज होता, क्योंकि या तो वो लोग नज़र आते जिनके चेहरों से निफाक टपकता था या फिर वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने माज़ूर और ज़ईफ़ करार दे दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं पूछा था, लेकिन जब आप तबूक पहुँच गए तो वहीं एक मजलिस में आपने दरियाफ़्त फरमाया कि कब ने किया। बनो सलमा के एक साहब ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इसके गुरूर ने उसे आने नहीं दिया, वो हुस्न व जमाल या लिबास पर उतरा कर रह गया। इस पर मुआज़ बिन जबल बोले, तुमने बुरी बात कही। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, हमें उनके मुताल्लिक़ खैर के सिवा और कुछ मालूम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया। कअब बिन मालिक ने बयान किया कि जब मुझे मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ला रहे हैं तो अब मुझ पर फ़िक्र सवार हुआ और मेरा ज़हन कोई ऐसा झूठा बहाना तलाश करने लगा जिससे मैं कल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खफगी से बच सकूं। अपने घर के हर अक्लमंद आदमी से उसके मुताल्लिक़ मैंने मशवरा लिया, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बिल्कुल करीब आ चुके हैं तो गलत ख़यालात मेरे जहन से निकल गए और मुझे यकीन हो गया कि इस मामला में झूठ बोलकर मैं अपने को किसी तरह महफूज नहीं कर सकता। चुनाचा मैंने सच्ची बात कहने का पुख्ता इरादा कर ली। सुबह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। जब आप किसी सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो ये आपकी आदत थी कि पहले मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और 2 रकत नमाज पढ़ते, फिर लोगों के साथ मजलिस में बैठते। जब आप इस अमल से फ़ारिग़ हो चुके तो आपकी खिदमत में लोग आने लगे जो ग़ज़वा में शरीक नहीं हो सके थे और कसम खा खा कर अपने अज़र बयान करने लगे। ऐसे लोगों की तादाद उसी के करीब थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़ाहिर को कबूल फरमा लिया, उनसे अहद लिया, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई और उनके बातिन को अल्लाह के सुपुर्द किया। इसके बाद मैं हाजिर हुआ। मैंने सलाम किया तो आप मुस्कुराए। आपकी मुस्कुराहट में खफगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ। मैं चंद कदम चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त फरमाया कि तुम ग़ज़वा में क्यों शरीक नहीं हुए? क्या तुमने कोई सवारी नहीं खरीदी थी? मैंने अर्ज़ किया, मेरे पास सवारी मौजूद थी। अल्लाह की कसम, अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी दुनियादार शख्स के सामने आज बैठा होता तो कोई ना कोई अज़र घुड़कर इसकी खफगी से बच सकता था। मुझे खूबसूरती के साथ गुफ्तगू का सलीका मालूम है, लेकिन अल्लाह की कसम, मुझे यकीन है कि अगर आज मैं आपके सामने कोई झूठा अज़र बयान करके आपको राज़ी कर लूँ तो बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको मुझसे नाराज़ कर देगा। इसके बजाय अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची बात बयान कर दूं तो यकीनन आपको मेरी तरफ से खफगी होगी, लेकिन अल्लाह से मुझे माफ़ी की पूरी उम्मीद है। नहीं, अल्लाह की कसम, मुझे कोई अज़र नहीं था। अल्लाह की कसम, इस वक्त से पहले कभी मैं इतना फ़ारिग़ अलबाल नहीं था और फिर भी मैं आपके साथ शरीक नहीं हो सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्होंने सच्ची बात बता दी। अच्छा, अब जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में ख़ुद कोई फ़ैसला कर दे। मैं उठ गया और मेरे पीछे बनो सलमा के कुछ लोग भी दौड़े हुए आए और मुझसे कहने लगे कि अल्लाह की कसम, हमें तुम्हारे मुताल्लिक़ ये मालूम नहीं था कि इससे पहले तुमने कोई गुनाह किया है और तुमने बड़ी कोताही की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वैसा ही कोई अज़र नहीं बयान किया जैसा दूसरे ना शरीक होने वालों ने बयान कर दी था।
तुम्हारे गुनाह के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तग़फ़ार ही काफ़ी हो जाता। अल्लाह की कसम, इन लोगों ने मुझे इस पर इतनी मलामत की कि मुझे ख्याल आया कि वापस जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई झूठा अज़र कराऊं। फिर मैंने उनसे पूछा क्या मेरे अलावा किसी और ने भी मुझ जैसा अज़र बयान किया है। इन्होंने बताया कि हम दो हज़रात ने उसी तरह माज़रत की जिस तरह तुमने की है और इन्हें जवाब भी वही मिला है जो तुम्हें मिला। मैंने पूछा कि उनके नाम क्या हैं। इन्होंने बता किया कि मरारा बिन रबी उमरी और हलाल बिन उमैया वाक़फ़ी। इन दो ऐसे सहाबा का नाम इन्होंने ले दिया था जो सालेह थे और बदर की जंग में शरीक हुए थे। उनका तर्ज अमल मेरे लिए नमूना बन गया। चुनाचा इन्होंने जब इन बुजुर्गों का नाम लिया तो मैं अपने घर चला आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हमसे बातचीत करने की मुमानत कर दी। बहुत से लोग जो ग़ज़वे में शरीक नहीं हुए थे, इनमें से सिर्फ हम 3 थे। लोग हमसे अलग रहने लगे और सब लोग बदल गए। ऐसा नज़र आता था कि हमसे सारी दुनिया बदल गई है। हमारा इससे कोई वास्ता ही नहीं है। 50 दिन तक हम उसी तरह रहे। मेरे 2 साथियों ने तो अपने घरों से निकलना ही छोड़ दिया, बस रोते रहते थे, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत थी कि मैं बाहर निकलता था, मुसलमानों के साथ नमाज में शरीक होता था और बाज़ारों में घूमा करता था, लेकिन मुझसे बोलता कोई ना था। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाजिर होता था, आपको सलाम करता। जब आप नमाज के बाद मजलिस में बैठते, मैं उसकी जुस्तजू में लगा रहता था कि देखूं सलाम के जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक होंठ हिले या नहीं। फिर आपके करीब ही नमाज पढ़ने लग जाता और आपको कनखीन से देखता रहता। जब मैं अपनी नमाज में मशगूल हो जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखते, लेकिन जूं ही मैं आपकी तरफ देखता आप रुख मुबारक फेर लेते। आखिर जब इस तरह लोगों की बेरखी बढ़ती ही गई तो मैं एक दिन अबू कतादा के बाग की दीवार पर चढ़ गया। वो मेरे चचाजाद भाई थे और मुझे उनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ था। मैंने इन्हें सलाम किया, लेकिन अल्लाह की कसम, इन्होंने भी मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, अबू कतादा, तुम्हें अल्लाह की कसम, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह और इसके रसूल से मुझे कितनी मोहब्बत है? इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा उनसे यही सवाल किया अल्लाह की कसम देकर, लेकिन अब भी वो खामोश थे। फिर मैंने अल्लाह का वास्ता देकर उनसे यही सवाल किया। इस मर्तबा इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह और इसके रसूल को ज़्यादा इल्म है। इस पर मेरे आंसू फूट पड़े। मैं वापस चला आया और दीवार पर चढ़कर नीचे बाहर उतर आया। इन्होंने बयान किया कि एक दिन मैं मदीना के बाजार में जा रहा था कि शाम का एक काश्तकार जो गल्ला बेचने मदीना आया था पूछ रहा था कि कब बिन मालिक कहाँ रहते हैं। लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया तो वो मेरे पास आया और मुल्क गुसान का एक ख़त मुझे दिया। इस ख़त में ये तहरीर था, अमाबद, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे साहब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ ज़ियादती करने लगे हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें कोई जलील नहीं पैदा किया है कि तुम्हारा हक़ ज़ाया किया जाए। तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे साथ बेहतर से बेहतर सलूक करेंगे। जब मैंने ये ख़त पढ़ा तो मैंने कहा कि ये एक और इम्तिहान आ गया। मैंने इस ख़त को तनूर में जला दिया। इन 50 दिनों में से जब 40 दिन गुजर चुके तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची मेरे पास आए और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हुक्म दिया है कि अपनी बीवी के भी करीब ना जाओ। मैंने पूछा, मैं उसे तलाक दे दूँ या फिर मुझे क्या करना चाहिए? इन्होंने बताया कि नहीं, सिर्फ उनसे जुदा हो, उनके करीब ना जाओ। मेरे दोनों साथियों को, जिन्होंने मेरी तरह माजरत की थी, भी यही हुक्म आपने भेजा था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि अब अपने मैके चली जाओ और इस वक्त तक वहीं रहो जब तक अल्लाह ताला इस मामला का कोई फैसला ना कर दे। कब ने बयान किया कि हलाल बिन उमैया, जिनका मुकाता हवा था, की बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हलाल बिन उमैया बहुत ही बूढ़े और कमज़ोर हैं, उनके पास कोई खादिम भी नहीं है, क्या अगर मैं उनकी खिदमत कर दी करूँ तो आप नापसंद फरमाएंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ वो तुमसे सोहबत ना करें। इन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह की कसम, वो तो किसी चीज़ के लिए हरकत भी नहीं कर सकते। जब से ये खफगी उन पर हुई है वो दिन है और आज का दिन है, उनके आंसू थमने में नहीं आते। मेरे घर के बाज़ लोगों ने कहा कि जिस तरह हलाल बिन उमैया की बीवी को उनकी खिदमत करते रहने की इजाज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी है, आप भी उसी तरह की इजाज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले लीजिए। मैंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, मैं इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त नहीं लूँगा। मैं जवान हूँ, मालूम नहीं जब से इजाज़त लेने जाऊँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए। इस तरह 10 दिन और गुजर गए और जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बातचीत करने की मुमानत फरमाई थी, इसके 50 दिन पूरे हो गए।
50वीं रात की सुबह को जब मैं फजर की नमाज पढ़ चुका और अपने घर की छत पर बैठा हुआ था, इस तरह जैसा कि अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, मेरा दम घटा जा रहा था और ज़मीन अपनी तमाम वसअतों के बावजूद मेरे लिए तंग होती जा रही थी कि मैंने एक पुकारने वाले की आवाज़ सुनी। जबल सला पर चढ़कर कोई बुलंद आवाज़ से कह रहा था, ए कअब बिन मालिक, तुम्हें बशारत हो। इन्होंने बयान किया कि यह सुनते ही मैं सजदे में गिर पड़ा और मुझे यकीन हो गया कि अब फराखी हो जाएगी। फजर की नमाज के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में हमारी तौबा की कबूलियत का ऐलान कर दी था। लोग मेरे यहाँ बशारत देने के लिए आने लगे और मेरे 2 साथियों को भी जाकर बशारत दी। एक साहब ज़ुबैर बिन अवाम अपना घोड़ा दौड़ाए आ रहे थे। इधर कबीला असलम के एक सहाबी ने पहाड़ी पर चढ़कर आवाज़ दी और आवाज़ घोड़े से ज़्यादा तेज़ थी। जिन सहाबी ने सला पहाड़ी पर से आवाज़ दी थी, जब वो मेरे पास बशारत देने आए तो अपने दोनों कपड़े उतारकर इस बशारत की खुशी में मैंने इन्हीं दे दिए। अल्लाह की कसम के उस वक्त इन 2 कपड़ों के सिवा देने के लायक और मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी। फिर मैंने अबू कतादा से 2 कपड़े मांगकर पहने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। जौफ दर जौफ लोग मुझसे मुलाकात करते जाते थे और मुझे तौबा की कबूलियत पर बशारत देते जाते थे, कहते थे अल्लाह की बारगाह में तौबा की कबूलियत मुबारक हो। कब ने बयान किया, आखिर में मस्जिद में दाखिल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते थे। चारों तरफ सहाबा का मजमा था। तलहा बिन उबैदुल्लाह दौड़कर मेरी तरफ बढ़े और मुझसे मुसाफिहा किया और मुबारकबाद दी। अल्लाह की कसम, वहाँ मौजूद मुहाजिरीन में से कोई भी उनके सिवा मेरे आने पर खड़ा नहीं हुआ। तलहा का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कब ने बयान किया कि जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो आपने फरमाया, चेहरा मुबारक खुशी और मुसर्रत दमक उठा था। इस मुबारक दिन के लिए तुम्हें बशारत हो जो तुम्हारी उम्र का सबसे मुबारक दिन है। इन्होंने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये बशारत आपकी तरफ से है या अल्लाह ताला की तरफ से? फरमाया नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बात पर खुश होते तो चेहरा मुबारक रोशन हो जाता था, ऐसा जैसे चंद का टुकड़ा हो। आपकी मुसर्रत हम तो चेहरा मुबारक से समझ जाते थे। फिर जब मैं आपके सामने बैठ गया तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अपनी तौबा की कबूलियत की खुशी में मैं अपना माल अल्लाह और इसके रसूल की राह में सदका कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन कुछ माल अपने पास भी रख लो, ये ज़्यादा बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, फिर मैं खैबर का हिस्सा अपने पास रख लूँगा। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे सच बोलने की वजह से निजात दी। अब मैं अपनी तौबा की कबूलियत की खुशी में यह अहद करता हूँ कि जब तक ज़िंदा रहूँगा सच के सिवा और कोई बात ज़बान पर ना लाऊँगा। बस अल्लाह की कसम, जब से मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये अहद किया, मैं किसी ऐसे मुसलमान को नहीं जानता जिसे अल्लाह ने सच बोलने की वजह से इतना नवाजा हो, जितनी नवाजिशात इसकी मुझ पर सच बोलने की वजह से हैं। जब से मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये अहद किया, फिर आज तक कभी झूठ का इरादा भी नहीं किया और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला बाकी ज़िंदगी में भी मुझे इससे महफूज रखेगा। और अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर आयत हमारे बारे में नाज़िल की थी। यकीनन अल्लाह ताला ने नबी, मुहाजिरीन और अंसार की तौबा कबूल की। इसके इरशाद वकूनवा मअल सादिकीन तक अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला की तरफ से इस्लाम के लिए हिदायत के बाद मेरी नज़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस सच बोलने से बढ़कर अल्लाह का मुझ पर और कोई इनाम नहीं हुआ कि मैंने झूठ नहीं बोला और इस तरह अपने को हलाक नहीं किया, जैसा कि झूठ बोलने वाले हलाक हो गए थे। नज़ूल वही के ज़माना में झूठ बोलने वालों पर अल्लाह ताला ने इतनी शदीद वईद फरमाई जितनी शदीद किसी दूसरे के लिए नहीं फरमाई होगी। फरमाया है, सहलफुन बालला लकम अज़ा इनकलबतम इरशाद फ़ान अल्लाह ला यर्ज़ियन लकुम अल्फ़ास्क़ीन तक। कब ने बयान किया, चुनाचा हम 3 उन लोगों के मामले से जुदा रहे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कसम खा ली थी और आपने उनकी बात मान भी ली थी, उनसे बैत भी ली थी और उनके लिए तलब मग़फ़िरत भी फरमाई थी। हमारा मुआमला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया था और अल्लाह ताला ने खुद इसका फ़ैसला फरमाया था। अल्लाह ताला के इरशाद वली अलसलासा अलज़ीन खलफ़वा से यही मुराद है कि हमारा मुक़द्दमा मुलतवी रखा गया और हम झील में डाल दिए गए। ये नहीं मुराद है कि जिहाद से पीछे रह गए, बल्कि मतलब ये है कि उन लोगों के पीछे रहे जिन्होंने कस्में खाकर अपने अज़र बयान किए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अज़र कबूल कर लिए। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब बस्ती हज्जर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजरना। हदीस नंबर 4419। तर्जुमा।
हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद जफ़ी ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक़ ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने ख़बर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं सालिम बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम हजर से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों की बस्तियों से जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, जब गुज़रना हो तो रोते हुए ही गुज़रो, ऐसा ना हो कि तुम पर भी वही अज़ाब आ जाए जो उन पर आया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक पर चादर डाल ली और बड़ी तेज़ी के साथ चलने लगे, यहाँ तक कि इस वादी से निकल आए। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब बस्ती हजर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़रना। हदीस नंबर 4420। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया और उनसे इब्न उम्र ने बयान किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब हजर के मुताल्लिक़ फरमाया कि इस मज़हब कौम की बस्ती से जब तुम्हें गुज़रना ही है तो तुम रोते हुए गुज़रो, कहीं तुम पर भी वो अज़ाब ना आ जाए जो उन पर आया था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम हजर में क़याम फरमाने का बयान। हदीस नंबर 4421। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने, उनसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी सलमा ने, उनसे साद बिन इब्राहीम ने, उनसे नाफ़ा बिन जबीर ने, उनसे रू बिन मगीरा ने और उनसे उनके वालिद मगीरा बिन शोबा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारिग़ होकर वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के लिए भी पानी लेकर हाजिर हुआ, जहाँ तक मुझे यकीन है इन्होंने यही बयान किया कि ये वाक़या ग़ज़वा तबूक का है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा मुबारक धोया और जब कोहनियों तक धोने का इरादा किया तो जिबा की आस्तीन तंग निकली। चुनाचा आपने हाथ जबा के नीचे से निकाल लिए और इन्हें धोया, फिर मौज़ू पर मसह किया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम हजर में क़याम फरमाने का बयान। हदीस नंबर 4422। तर्जुमा। हमसे खालिद बिन मुखलिद ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान बिन बिलाल ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमरू बिन यही ने बयान किया, उनसे अब्बास बिन सहल बिन साद ने और उनसे अबू हमीद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम ग़ज़वा तबूक से वापस आ रहे थे। जब आप मदीना के करीब पहुँचे तो मदीना की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये ताबा है और ये उहुद पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत रखता है और हम इससे मोहब्बत रखते हैं। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम हजर में क़याम फरमाने का बयान। हदीस नंबर 4423। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा हमको हमीद तवील ने ख़बर दी और इन्हें अनस बिन मालिक ने कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस हुए और मदीना के करीब पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जहाँ भी तुम चले और जिस वादी को भी तुमने क़त किया वो अपने दिल से तुम्हारे साथ साथ थे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगरचे उनका क़याम उस वक्त भी मदीना में ही रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम वो मदीना में रहते हुए भी अपने दिल से तुम्हारे साथ थे, वो किसी अज़र की वजह से रुक गए थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब कसरी शाह ईरान और कैसर शाह रूम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुतूत लिखना। हदीस नंबर 4424। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन रबा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे याकूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे सालेह बिन कीसान ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्हें उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने ख़बर दी और इन्हें अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने ख़बर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फ़ारिस कसरी के पास अपना ख़त अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा सहमी को देकर भेजा और इन्हें हुक्म दिया कि ये ख़त बहरीन के गवर्नर को दे दें, जो कसरी का आलम था। कसरी ने जब आपका ख़त मुबारक पढ़ा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरा ख़याल है कि इब्न मुसैयब ने बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ की कि वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाएं। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब कसरी शाह ईरान और कैसर शाह रूम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुतूत लिखना। हदीस नंबर 4425। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन हैसिम ने बयान किया, कहा हमसे औफ अराबी ने बयान किया, उनसे इमाम हुस्न बसरी ने, उनसे अबू बकरा ने बयान किया कि जंग जमल के मौका पर वो जुमला मेरे काम आ गया जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था। मैं इरादा कर चुका था कि असहाब जमल आयशा और आपके लश्कर के साथ शरीक होकर अली की फ़ौज से लड़ूं।
इन्होंने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि अहल फारिस ने कसरी की लड़की को वारिस तख्त व ताज बनाया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जिसने अपना हुक्मरान किसी औरत को बनाया हो। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब कसरी शाह ईरान और कैसर शाह रूम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतूत लिखना। हदीस नंबर 4426। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा कि मैंने ज़हरी से सुना, इन्होंने साहब बिन यजीद से सुना, वो बयान करते थे कि मुझे याद है जब मैं बच्चों के साथ सनिया अलविदा की तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने गया था। सुफियान ने एक मरतबा मअल ग़लमान के बजाय मअल सबियन बयान किया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब कसरी शाह ईरान और कैसर शाह रूम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतूत लिखना। हदीस नंबर 4427। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने और उनसे साहब बिन यजीद ने कि मुझे याद है जब मैं बच्चों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस तशरीफ़ ला रहे थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान हदीस नंबर 4428। तर्जुमा और यूनुस ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे रू ने बयान किया और उनसे आयशा ने बयान किया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4429। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने और उनसे फज़ल बिन हारिस ने बयान किया कि मैंने सुना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़रिब की नमाज में वाला मरसला तुरफ़ा के क़ुरात कर रहे थे। इसके बाद फिर आपने हमें कभी नमाज नहीं पढ़ाई यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज़ा कर ली। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4430। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अररा ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अबू बशर ने, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि उमर आपको मजालिस में अपने करीब बैठते थे। इस पर अबदाल रहमान बिन औफ ने एतराज़ किया कि इस जैसे तो हमारे बच्चे हैं। उन्होंने फरमाया कि मैंने ये तर्ज अमल जिस वजह से इख्तियार किया वो आपको मालूम भी है। फिर उन्होंने इब्न अब्बास से इस आयत यानी अज़ाजा नसर अल्लाह वाला फ़तह के मुताल्लिक़ पूछा। इब्न अब्बास ने जवाब दिया कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात थी, आपको अल्लाह ताला ने आयत में उसी की इत्तिला दी है। उन्होंने फरमाया कि जो तुमने बताया वही मैं भी इस आयत के मुताल्लिक़ जानता हूँ। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4431। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे सुलेमान हॉल ने, उनसे सईद बिन जबीर ने बयान किया कि इब्न अब्बास ने जुमेरात के दिन का जिक्र किया और फरमाया मालूम भी है जुमेरात के दिन किया हुआ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ में तेज़ी पैदा हुई थी। उस वक्त आपने फरमाया कि लाओ मैं तुम्हारे लिए वसीयतनामा लिख दूँ कि तुम इस पर चलोगे तो उसके बाद फिर तुम कभी सही रास्ते को न छोड़ोगे। लेकिन ये सुनकर वहाँ इख्तिलाफ पैदा हो गया, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने निज़ा न होना चाहिए। बाज़ लोगों ने कहा कि क्या आप शिद्दत मरज़ की वजह से बेमानी कलाम फरमा रहे हैं, जो आपकी शान अक़दस से बईद है, फिर आपसे बात समझने की कोशिश करो। बस आपसे सहाबा पूछने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ यहाँ शोर वाओ गल ना करो, मैं जिस काम में मशगूल हूँ वो इससे बेहतर है जिसके लिए तुम कह रहे हो। इसके बाद आपने सहाबा को 3 चीज़ों की वसीयत की, फरमाया कि मुशरिकीन को जज़ीरा अरब से निकाल दो। एलची जो कबाइल के तुम्हारे पास आएँ उनकी इस तरह खातिर किया करना जिस तरह मैं करता आया हूँ। और तीसरी बात इब्न अब्बास ने या सईद ने बयान नहीं की या सईद बिन जबीर ने या सुलेमान ने कहा, मैं तीसरी बात भूल गया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4432। तर्जुमा
हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक बिन हमाम ने बयान किया, इन्हीं मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब हुआ तो घर में बहुत से सहाबा मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लाओ, मैं तुम्हारे लिए एक दस्तावेज़ लिख दूँ, अगर तुम इस पर चलते रहे तो फिर तुम गुमराह ना हो सकोगे। इस पर उम्र ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी की सख्ती हो रही है, तुम्हारे पास कुरान मौजूद है, हमारे लिए तो अल्लाह की किताब बस काफ़ी है। फिर घर वालों में झगड़ा होने लगा, बाज़ ने तो ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज़ लिखने की दे दो कि इस पर आप हिदायत लिखवा दें और तुम इसके बाद गुमराह ना हो सको। बाज़ लोगों ने इसके खिलाफ दूसरी राय पर इसरार किया। जब शोर व गुल और निज़ा ज़्यादा हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ से जाओ। उबैदुल्लाह ने बयान किया कि इब्न अब्बास कहते थे कि मुसीबत सबसे बड़ी ये थी कि लोगों ने इख्तिलाफ और शोर करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हिदायत नहीं लिखने दी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4433। तर्जुमा हमसे यसरा बिन सफ़ून बिन जमील लख्मी ने बयान किया, कहा हमसे अबरहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे रू ने और उनसे उम्मुल मुमिनीन आयशा ने बयान किया कि मरज़ अलमूत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा को बुलाया और आहिस्ता से कोई बात उनसे कही जिस पर वो रोने लगी। फिर दोबारा आहिस्ता से कोई बात कही जिस पर वो हंसने लगी। फिर हमने उनसे इसके मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि आपकी वफ़ात उसी मरज़ में हो जाएगी। मैं ये सुनकर रोने लगी। दूसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे जब सरगोशी की तो ये फरमाया कि आपके घर के आदमियों में सबसे पहले मैं आपसे जा मिलूंगी तो मैं हंसी थी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4434। तर्जुमा हमसे यसरा बिन सफ़ून बिन जमील लख्मी ने बयान किया, कहा हमसे अबरहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे रू ने और उनसे उम्मुल मुमिनीन आयशा ने बयान किया कि मरज़ अलमूत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा को बुलाया और आहिस्ता से कोई बात उनसे कही जिस पर वो रोने लगी। फिर दोबारा आहिस्ता से कोई बात कही जिस पर वो हंसने लगी। फिर हमने उनसे इसके मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि आपकी वफ़ात उसी मरज़ में हो जाएगी। मैं ये सुनकर रोने लगी। दूसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे जब सरगोशी की तो ये फरमाया कि आपके घर के आदमियों में सबसे पहले मैं आपसे जा मिलूंगी तो मैं हंसी थी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4435। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे साद ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि मैं सुनती आई थी कि हर नबी को वफ़ात से पहले दुनिया और आखिरत के रहने में इख्तियार दिया जाता है। फिर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सुना, आप अपने मरज़ अलमूत में फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ भारी हो चुकी थी। आप आयत में अल्ज़ीन आनम अल्लाह अलैहिम की तिलावत फरमा रहे थे, यानी उन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। मुझे यकीन हो गया कि आपको भी इख्तियार दे दिया गया है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4436। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने, उनसे साद बिन इब्राहीम ने, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मरज़ अलमूत में बार बार फरमाते थे, अल्लाहुम अलरफ़ीक़ अला अली अल्लाह, मुझे मेरे रफ़क़ा अनबिया और सिद्दीक़ीन में पहुँचा दे जो आला अलियन में रहते हैं। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4437। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने कि रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया और उनसे आयशा ने बयान किया, तंदुरुस्ती के ज़माने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जब भी किसी नबी की रूह कब्ज़ा की गई तो पहले जन्नत में उसके क़यामगाह उसे ज़रूर दिखा दी गई, फिर उसे इख्तियार दिया गया
रावी को शक था कि लफ्ज़ यहया है या यखीर, दोनों का मफ़हूम एक ही है। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़े और वक्त करीब आ गया तो सर मुबारक आयशा की रान पर था और आप पर गशी तारी हो गई थी। जब कुछ होश हुआ तो आपकी आँखें घर की छत की तरफ उठ गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम फ़ी अल-रफ़ीक़ अल-आली। मैं समझ गई कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यानी दुनियावी ज़िंदगी को पसंद नहीं फरमाएंगे। मुझे वो हदीस याद आ गई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंदुरुस्ती के ज़माने में फरमाई थी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4438। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन यही ज़ेली ने बयान किया, कहा हमसे अफ़ान बिन मुस्लिम ने बयान किया, उनसे सख्र बिन जवरिया ने, उनसे अबदाल रहमान बिन कासिम ने, उनसे उनके वालिद कासिम बिन मोहम्मद ने और उनसे आयशा ने कि उनके भाई अबदाल रहमान बिन अबी बकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सीने से टेक लगाए हुए थे। अबदाल रहमान के हाथ में एक ताज़ा मसूका इस्तेमाल के लिए थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसूका की तरफ देखते रहे। चुनाचा मी ने उनसे मसूका ले ली और उसे अपने दांतों से चबाकर अच्छी तरह झाड़ने और साफ़ करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। आपने वो मसूका इस्तेमाल की जितने उम्दा तरीक़ा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मसूका कर रहे थे। मैंने आपको इतनी अच्छी तरह मसूका करते कभी नहीं देखा। मसूका से फ़ारिग़ होने के बाद आपने अपना हाथ या अपनी उंगली उठाई और फरमाया, फ़ी अल-रफ़ीक़ अल-आली 3 मरतबा और आपका इंतकाल हो गया। आयशा कहा करती थीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो सर मुबारक मेरी हनसली और ठोड़ी के दरमियान में था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4439। तर्जुमा मुझसे हिब्बान बिन मूसा मरूज़ी ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं यूनुस ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने कहा कि मुझे रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी और इन्हीं आयशा ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार पड़ते तो अपने ऊपर मऊज़तीन सूरत अल-फलक और सूरत अल-नास पढ़कर दम करली करते थे और अपने जिस्म पर अपने हाथ फेरली करते थे। फिर जब वो मरज़ आपको लाहक हुआ जिसमें आपकी वफ़ात हुई तो मी मऊज़तीन पढ़कर आप पर दम किया करती थी और हाथ पर दम करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर फेरा करती थी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4440। तर्जुमा हमसे माली बिन असद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन मुख्तार ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, उनसे इबाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने और इन्हीं आयशा ने खबर दी कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। वफ़ात से कुछ पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुश्त से उनका सहारा लिए हुए थे। आपने कान लगाकर सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह माग़फ़िर ली वारहमनी वालहक़नी बालरफ़ीक़, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फ़रमा, मुझ पर रहम कर और मेरे रफ़ीक़ों से मुझे मिला। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4441। तर्जुमा हमसे सलत बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे अबूना वज़ाह युश्करी ने बयान किया, उनसे हलाल बिन अबी हमीद वज़ान ने, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरज़ अल-मौत में फरमाया कि अल्लाह ताला ने यहूदियों को अपनी रहमत से दूर कर दी कि इन्होंने अपने अनबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। आयशा ने कहा कि अगर ये बात ना होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी खली रखी जाती, लेकिन आपको ये ख़तरा था कि कहीं आपकी कब्र को भी सजदा ना किया जाने लगे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4442। तर्जुमा हमसे सईद बिन अफ़ीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे लीस बिन साद ने बयान किया कि मुझसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने कहा कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद ने खबर दी और उनसे उम्मुल मोमिनीन आयशा ने बयान किया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उठना बैठना दुश्वार हो गया और आपके मरज़ ने शिद्दत इख्तियार कर ली तो तमाम अज़वाज मतहरत उनसे आपने मेरे घर में अय्याम मरज़ गुजारने के लिए इजाज़त मांगी। सब ने जब इजाज़त दे दी तो आप मैमुना के घर से निकले। आप 2 आदमियों का सहारा लिए हुए थे और आपके पाँव ज़मीन से घिस रहे थे।
जिन दो सहाबा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहारा लिए हुए थे, उनमें एक अब्बास बन अब्दाल मतलब थे और एक और साहब उबैदुल्लाह ने बयान किया कि फिर मैंने आयशा की इस रिवायत की खबर अब्दुल्लाह बिन अब्बास को दी तो इन्होंने बतलाया, मालूम है वो दूसरे साहब जिनका नाम आयशा ने नहीं लिया कौन ही। बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया मुझे तो नहीं मालूम है। इन्होंने बतलाया कि वो अली थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मत्थरा आयशा बयान करती थीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे घर में आ गए और तकलीफ़ बहुत बढ़ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 मुश्कीज़े पानी के भर कर लाओ और मुझ पर डाल दो, मुमकिन है इस तरह मैं लोगों को कुछ नसीहत करने के काबिल हो जाऊँ। चुनाचा हमने आपको आपकी ज़ूजा मत्थरा हिफ्सा के एक लगन में बिठाया और इन्हीं मुश्कीज़ों से आप पर पानी धारने लगे। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ के इशारा से रोका कि बस हो चुका। बयान किया कि फिर आप लोगों के मजमा में गए और नमाज पढ़ाई और लोगों को खिताब किया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4443। तर्जुमा और मुझे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने खबर दी और उनसे आयशा और अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि शिद्दत मरज़ के दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर खींचकर बार बार अपने चेहरे पर डालते थे, फिर जब दम घुटने लगता तो चेहरे से हटा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी शिद्दत के आलम में फरमाते थे, यहूद व निसारी अल्लाह की रहमत से दूर हुए क्योंकि इन्होंने अपने अनबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को उनका अमल इख्तियार करने से बचते रहने की ताकीद फरमा रहे थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4444। तर्जुमा और मुझे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने खबर दी और उनसे आयशा और अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि शिद्दत मरज़ के दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर खींचकर बार बार अपने चेहरे पर डालते थे, फिर जब दम घुटने लगता तो चेहरे से हटा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी शिद्दत के आलम में फरमाते थे, यहूद व निसारी अल्लाह की रहमत से दूर हुए क्योंकि इन्होंने अपने अनबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को उनका अमल इख्तियार करने से बचते रहने की ताकीद फरमा रहे थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4445। तर्जुमा मुझे उबैदुल्लाह ने खबर दी कि आयशा ने कहा, मैंने इस मामला यानी अय्याम मरज़ में अबू बकर को इमाम बनाने के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार पूछा। मैं बार बार आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि मुझे यकीन था कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपकी जगह पर खड़ा होगा, लोग इससे कभी मोहब्बत नहीं रख सकते, बल्कि मेरा ख्याल था कि लोग इससे बदफाली लेंगे, इसलिए मैं चाहती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को इसका हुक्म ना दें। इसकी रिवायत इब्न उम्र, अबू मूसा और इब्न अब्बास ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4446। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, कहा कि मुझसे यजीद बिन अलहद ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन कासिम ने, उनसे उनके वालिद कासिम बिन मोहम्मद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो आप मेरी हनसली और ठोड़ी के दरमियान सर रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिद्दत सिकरात देखने के बाद अब मैं किसी के लिए भी नज़ा की शिद्दत को बुरा नहीं समझती। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान। हदीस नंबर 4447। तर्जुमा मुझसे इसहाक़ बिन राहुया ने बयान किया, कहा हमको बशर बिन शोएब बिन अबी हमज़ा ने खबर दी, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्हें अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक अंसारी ने खबर दी और कब बिन मालिक इन 3 सहाबा में से एक थे जिनकी ग़ज़वा तबूक में शिरकत न करने की तौबा कबूल हुई थी। इन्हें अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने खबर दी कि अली बिन अबी तालिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से बाहर आए। ये इस मरज़ का वाक़या है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई थी। सहाबा ने आपसे पूछा, अबुल हसन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज मिजाज किया है? सुबह इन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको इफ़ाक़ा है।
پھر عباس بن عبدالمطلب نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ تم اللہ کی قسم 3 دن کے بعد زندگی گزارنے پر تم مجبور ہو جاؤ گے۔ اللہ کی قسم مجھے تو ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض سے صحت نہیں پا سکیں گے۔ موت کے وقت بنو عبدالمطلب کے چہروں کی مجھے خوب شناخت ہے۔ اب ہمیں آپ کے پاس چلنا چاہیے اور آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے بعد خلافت کیسے ملے گی۔ اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اگر کوئی دوسرا مستحق ہوگا تو وہ بھی معلوم ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق اپنے خلیفہ کو ممکن ہے کچھ وصیتیں کر دیں۔ لیکن علی نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر ہم نے اس وقت آپ سے اس کے متعلق کچھ پوچھا اور آپ نے انکار کر دی تو پھر لوگ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیں گے۔ میں تو ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھوں گا۔ صحیح بخاری کتاب غزوت کا بیان باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 4448۔ ترجمہ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے لیس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ پیر کے دن مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ آپ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے حجرہ کا پردہ اٹھا کر صحابہ کو دیکھ رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ہنس پڑے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تاکہ صف میں آ جائیں۔ آپ نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ انس نے بیان کیا، قریب تھا کہ مسلمان اس خوشی کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنی نماز توڑنے ہی کو تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو، پھر آپ حجرہ کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ ڈال لیا۔ صحیح بخاری کتاب غزوت کا بیان باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 4449۔ ترجمہ مجھ سے محمد بن عبید نے بیان کیا، کہا ہم سے عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا، ان سے عمر بن سعید نے، انہیں ابن ابی ملیکہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ کے غلام ابو عمرو ذکوان نے کہ عائشہ فرمایا کرتی تھیں، اللہ کی بہت سی نعمتوں میں ایک نعمت مجھ پر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں اور میری باری کے دن ہوئی۔ آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میرے اور آپ کے تھوک کو ایک ساتھ جمع کیا تھا کہ عبدالرحمن گھر میں آئے تو ان کے ہاتھ میں مسوکہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسوکہ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ مسوکہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا، یہ مسوکہ آپ کے لیے لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارہ سے اس بات میں جواب دیا، میں نے وہ مسوکہ ان سے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چبا نہ سکے، میں نے پوچھا آپ کے لیے میں اسے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارہ سے اس بات میں جواب دیا، میں نے مسوکہ نرم کر دی۔ آپ کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا، چمڑے کا یا لکڑی کا؟ راوی حدیث عمر کو اس سلسلے میں شک تھا، اس کے اندر پانی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے ہاتھ اس کے اندر داخل کرتے اور پھر انہیں اپنے چہرے پر پھیراتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ۔ موت کے وقت شدت ہوتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے فی الرفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ رحلت فرما گئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ صحیح بخاری کتاب غزوت کا بیان باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 4450۔ ترجمہ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن رو نے بیان کیا، انہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں عائشہ نے کہ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہتے تھے کہ کل میرا قیام کہاں ہوگا، کل میرا قیام کہاں ہوگا۔ آپ عائشہ کی باری کے منتظر تھے، پھر ازواج مطہرات نے عائشہ کے گھر قیام کی اجازت دے دی اور آپ کی وفات انہی کے گھر میں ہوئی۔ عائشہ نے بیان کیا کہ آپ کی وفات اسی دن ہوئی جس دن قاعدہ کے مطابق میرے یہاں آپ کے قیام کی باری تھی۔ رحلت کے وقت سر مبارک میرے سینے پر تھا اور میرا تھوک آپ کے تھوک کے ساتھ ملا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ عبدالرحمن بن ابی بکر داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں استعمال کے قابل مسوکہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے کہا، عبدالرحمن، یہ مسوکہ مجھے دے دو۔ انہوں نے مسوکہ مجھے دے دی۔
میں نے اسے اچھی طرح چبایا اور جھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، پھر آپ نے وہ مسوکہ کی۔ اس وقت آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔